Hello everyone, I am Pooja Nath. I welcome all of you to the online classes of Paramount Junior College. I will take the class of biology, and today I will going to start the unit 7 of the first chapter of the unit 7, that is chapter 5, principle of inheritance. Class of biology, and I will take the chapter 5, which is principle of inheritance and variation. Before starting the chapter, we should know some basic things about the chapter. All we know that all the living organisms are made of what? Are made of cell, either prokaryotic or eukaryotic. All the organisms are made of cell. If the organism is prokaryotic, then it will not have the nucleus. But if it is eukaryotic, it will have the nucleus somewhere in the center. Okay, and all we know, whether prokaryotic or eukaryotic, they will contain the genetic material, either DNA or RNA. Most of the organisms contain DNA as a genetic material, and this DNA is situated in the chromosome, and chromosome is located in the nucleus if it is a eukaryotic cell. But if it is a prokaryotic cell, nucleus will be not there, but chromosome will be there. So that means every cell, if it is prokaryotic, then it will have nucleus. If it is eukaryotic, it will have nucleus. If it is prokaryotic, it will not have the nucleus. Then inside the nucleus, chromosomes are there. Chromosomes contain the vehicle of genetic. They are the vehicle. Chromosomes are actually the vehicles. They carry the gene, and these genes are actually these genes are transferred from parents to offspring. Whatever character we get, means we look somewhat like our parents. हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं. पेरेंट्स का, अगर किसी का पेरेंट्स टॉल होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम भी टॉल हो जाए. तो ये क्यों होता है? बिकॉज द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड. वो कैरेक्टर है, वो एक्चुअली वो कैरेक्टर जीन है. वो जीन ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जीन कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम. सो एज आई टोल्ड, जीन इज द basic unit of heredity. Means it is the thing which is transferred from parents to offspring. Offspring means the kids, the baby. Okay, so this the study of gene and how they are transferred from parents to offspring, all these are studied in one branch of biology, that is called the genetics. So genetics is actually the branch of biology which deals scientifically the transfer of characters from parents to offspring. Means it is the study of heredity and variation. Okay, we will discuss about the term heredity and variation later on. But in simple word, genetics is the study of the transfer of character from parents to offspring. It is a study. Then who gave the term genetics? William Baxter in 1906 gave the term genetics. But he is not known the father of genetics. The father of genetics is known as George John Mendel. He is known as the father of genetics because after his classical hybridization experiment, genetics come to the focus. So, and the term gene is not given by the Mendel, though he is the father of genetics, but he used to call the gene as factors. So the term gene was given by Wilhelm Johansen in 1909. He gave the term gene, but Mendel used to call this gene as factors. Mendel used to call these genes as factors. So the term gene was given by William Johnson in 1909. Now we should know what are the branches of genetics. See, there are generally main three branches of genetics. First one is the classical genetics, then the molecular genetics, and the third one is the population genetics. So whatever we are going to study in chapter 5, it is regarding classical genetics. This classical genetics study about the mode of transfer of character, how they are transferred. Like the Mendel's principle, all these Mendel's principle, sex determination, linkage, recombination, all these come under classical genetics. Then molecular genetics. What is molecular genetics? Molecular genetics, we are going to study the molecular genetics in chapter 6. It is actually what? It is actually the study of
genetic material, DNA and RNA. Study means it is the study of structure. It is the study of structure. What is their chemical structure? How DNA and RNA is made? What are the things we are made of? Then their replication. How from DNA, one DNA, other DNA is formed, from an RNA, RNA is formed, and their expression. Expression in the sense how they are going to express in the form of by forming the protein. So genetic material gives the instruction to form the certain specific protein for the body. Then how, as we know, genetics is now getting so advanced that we get the different varieties of agricultural products, different varieties of plants and the drugs because of the molecular genetics. Then comes to the population genetics. Population genetics tells us about the frequency of a particular gene in a particular population. Suppose a population of human being, suppose this is the population of human being. Okay, it has many individuals and every individual will carry some genes. And suppose I am giving some genes A, B, C, D, A, C, E, A. So the population genetics deals with the frequency of the particular gene. See in this. Here, A is repeating 4 times. That means the frequency of A is more. So, if A started to develop more, it may eliminate the other genes. Then what will happen? Those populations containing only the A gene can transform. After millions of years, they go through the process of evolution and form a new variety or new species. So, population genetics actually deals with the evolutionary relationship between the different organisms. We can easily understand about the relationship of the different population, like we used to say chimpanzee and human are nearest relatives. This came to the focus after studying the molecular genetics and population genetics. Means molecular level, what are their structure, DNA is made of and all this, and how they are related. So genetics is actually a very important topic for the. So now, as I discussed about the brief history of your genetics and what is genetics. So we will now focus on the chapter. Before starting the Mendel's law, we should know some terms like what is heredity. Okay, so heredity is the process of transmission of character from one generation to the another generation, or it is the process of transmission of character from parents to offspring. मतलब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर कि कैसे कोई भी कैरेक्टर मतलब हम लोगों ने जीन कहा था वो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, ट्रांसफर कैसे होता है, वो प्रोसेस को, उसके आने के प्रोसेस को, ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. और इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इनहेरिटेंस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का डेफिनेशन लगभग सेम ही है, डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइए. मैं इनहेरिटेंस का भी यही लिख सकते कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. नाउ व्हाट इज वेरिएशन. अभी मैंने बोला कि हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है. आप अपना एग्जांपल ही ले लीजिए. आप दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, आप में कुछ सिमिलरिटी मम्मी के जैसे होगा, कुछ सिमिलरिटी पापा के जैसे होगा. वो क्यों होगा? बिकॉज उन दोनों ने मिल के आपको जीन दिया, उन दोनों ने डोनेट किया आपको जीन. तो उसके वजह से आप में ऐसा हो सकता है कि आप आपके पापा के जैसे दिखते हो या आपके मम्मी के जैसा दिखते हो, या तो आप इन बिटवीन दोनों से थोड़ा अलग दिखते हो. वो क्यों अलग दिखते हो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी. सो ऐसा दिखने का कारण क्यों है? वो जीन जो आता है, वो जीन क्यों आता है? वो आइदर बाय सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जीन ट्रांसफर नहीं होता, उनमें भी जीन ट्रांसफर होता है. दैट्स व्हाई आई रोट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, उन लोग का उनमें पेरेंट्स तो वन ही रहता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. स्टिल वो पेरेंट क्या करता है? वो पेरेंट single parent is there, that parent will give the gene to the next generation. Then sexual reproduction में भी जीन ट्रांसफर होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट में, मेल गैमेट जैसे कि हम जनरली
स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट जनरली एग। तो एग और ओवम जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू प्रोजेनी बनता है। तो वो एग और ओवम लेके आता है जीन फ्रॉम मदर एंड फादर। नाउ वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब अब मैंने कहा था ना, जैसे कि आप या तो आपके मम्मी के जैसे होंगे, या तो पापा के जैसे होंगे, या तो कुछ इन बिटवीन होंगे, फिर थोड़ा अलग। वो थोड़ा अलग को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। मीन्स द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। जिस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वो डिफरेंस क्यों आता है? वो जीन एक्सप्रेशन के टाइम में कौन सा ऐसा हो सकता है कि कोई जीन आप में है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और कोई जीन आप में ऐसा नहीं है कि हम लोग में ऐसा आपने देखा होगा कि किसी पेरेंट्स का कोई पेरेंट है टॉल है बट उसका बच्चा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है वो ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ऐसा कभी इसलिए होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिसेसिव जीन आता है लेकिन वो डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स मतलब हेट्रोजाइगस थे। वो हेट्रोजाइगस रिसेसिव हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों ने जीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, जीन कहाँ पे रहता है। अब जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलीलीज। सो एलीलीज और एलिलोमॉर्फ्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेट। हम लोग यहाँ पे ट्रेट जो बोलते हैं वो एक्चुअली हेरिडिटरी ट्रेट। तो हेरिडिटरी ट्रेट मतलब क्या हो, सिंपल जो कैरेक्टर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में आता है इसी को हम लोग हेरिडिटरी ट्रेट्स और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो अभी मैंने बोला कि जीन, एक ही जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। लेट्स से एग्जांपल, आप शू का एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग सभी शू पहनते हैं, पेयर में पहनते हैं। तो जीन हमेशा क्या में रहता है, कोई भी कैरेक्टर के लिए पेयर में रहता है। अब आप अगर एक पेयर में स्पॉट शू पहनते हैं और एक में हील पहनते हैं, दोनों ही तो शू है, दोनों क्या है, दोनों ही शू है, लेकिन और दोनों ही हम लोग पेड़ में ही लगाते हैं। तो दोनों ही शू है, दोनों पेड़ में लगाते हैं, मतलब दोनों का फंक्शन एक ही है लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। जैसे कि एक मैंने स्पोर्ट शू बोला, दूसरा हील, तो वैसे ही जीन का भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग एलीलीज बोलते हैं। इसे एक डायग्राम से देख समझते हैं। सो एलीलीज जो होता है, अगर मैं यहाँ पे, हम लोग को पता है जो मेल गैमेट से क्या आता है, मेल गैमेट से हम लोग अगर ह्यूमन का बात करें, हम लोग भी कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। ये 46 आता कहाँ से? 46 23 मदर से और 23 फादर से आता है। तो फादर ने दिया 23 क्रोमोसोम्स, फिर मदर ने भी दिया 23 क्रोमोसोम्स, दोनों मिलके बनते हैं 46। अब बात ये है, मैंने बोला कि पेयर में रहते हैं, जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं। वो पेयरिंग कहाँ से होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, पापा से सपोज एक क्रोमोसोम जिसका नाम ए पकड़ लेते हैं, कोई भी क्रोमोसोम जिसका नाम ए है, तो सेम क्रोमोसोम ए मम्मी से भी आएगा। मदर विल ऑल्सो गिव द क्रोमोसोम ए। वो क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम ए दोनों पेयर बनेंगे। तो उसी पेयरिंग को, वो दोनों क्रोमोसोम जब पेयर बनते हैं उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम सेट्स ऑफ जीन रहता है इन सेम सीक्वेंस, सेम सेट्स ऑफ जीन इन सेम सीक्वेंस। अभी एक डायग्राम से मैं समझा देती हूँ। ये सपोज मैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम बनाती हूँ यहाँ पे। These are the two homologous chromosome. These are the homologous chromosome. एक मम्मी से आया, एक पापा से आया। सपोज अब मैंने कहा कि सेम सीक्वेंस रहता है जीन्स का और जीन्स भी सेम रहता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ जीन्स का नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे ए, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे टी, स्मॉल टी, यहाँ पे डी, बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ। तो मैंने कहा कि सेम सीक्वेंस में रहता है लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हो सकता है। तो देखिए ये ए जो है, ये ए का पोजीशन ए में है। अब बात ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो आइडेंटिकल भी हो सकता है या नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। आइडेंटिकल जैसे ये कैपिटल ए मैंने जीन अगर पकड़ा तो उसी का सेम पोजीशन, जीन के पोजीशन को, एक जीन के पोजीशन को हम लोग लोकस बोलते हैं और बहुत सारे मोर देन वन जीन के पोजीशन को हम लोग लोसाई बोलते हैं। सो इस
इस लोकस में, इस जीन के लोकस में सेम पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम में आइदर कैपिटल ए रहेगा, मीन्स आइडेंटिकल हो जाएगा, या तो स्मॉल ए भी रह सकता है। तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए पेयरिंग है तो हम लोग बोलेंगे वो एलिलीज तो है लेकिन सेम है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए रहता है, दैट मीन्स वो आइडेंटिकल है बट दे आर, दैट मीन्स दे आर नॉन आइडेंटिकल बट दे आर एलिलीज। वो लोग नॉन आइडेंटिकल है बट एलिलीज है। अभी मैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में पहले कुछ उससे बताने से पहले वी शुड नो अबाउट द डोमिनेंट एलिलीज एंड रिसेसिव एलिलीज। डोमिनेंट एलिलीज क्या करता है? डोमिनेंट एलिली, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा, तो इसमें डोमिनेंट एलिली को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा, तो डोमिनेंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डोमिनेंट एलीली क्या होता है? वो अगर उसका जो दूसरा एलीली है वो अगर नॉन आइडेंटिकल होगा और वो अगर उससे मतलब रिसेसिव होगा तो डोमिनेंट एलीली उसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा। जैसे कि हम लोग के एल्डर सिस्टर ब्रदर सिस्टर रहते हैं, वो लोग हम लोग को बाउंड कर देते कुछ काम करने का, हम लोग को दिल नहीं होने से भी, बट वी आर बाउंड। सपोज आपका बहुत दिल है कि मूवी देखें, लेकिन आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर ने आपको बोला नो यू हैव टू स्टडी, सो आप बाउंड हो कि आप पढ़ो बैठ के, तो आप अपने एल्डर सिस्टर या ब्रदर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो यू बिकेम द रिसेसिव वन और आपके ब्रदर या सिस्टर बन जाते हैं डोमिनेंट वन। अगर आपके सेम वैसे ही, तो अगर आपके बड़े भैया या बहन अगर घर से बाहर निकल जाते हैं, कोई नहीं है, तो मतलब आप फ्री है, मतलब यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप मूवी देखें, कुछ भी गेम खेले, पढ़े, ये आपका मर्जी है। सो एट दैट टाइम यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ऐसे ही रिसेसिव एलिली भी करता है। डोमिनेंट एलिली रिसेसिव एलिली को तो हाइड कर देता है, लेकिन रिसेसिव एलिली तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। मतलब जब अगर मैं एक रिसेसिव एलिली हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैं स्मॉल ए लेती हूँ, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है मीन्स होमोजाइगस, आइडेंटिकल एलिलीज है मतलब होमोजाइगस है। और यहाँ पे डोमिनेंट एलिली नहीं है, मतलब कैपिटल ए इज नॉट देयर, तब अभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो रिसेसिव एलिली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलिली और इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। तो एलिलीज क्या होता है? एलिलीज आर द ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ द जीन। तो ऑलरेडी फॉर्म्स कोई एक कैरेक्टर को अलग अलग जैसे दिखाता है। जैसे हम और थोड़ा समझा देते हो, अगर हम लोग ह्यूमन का आई कलर का बात करें, सपोज एक जीन मैंने लिया कैपिटल बी, वो कलर देता है ब्लैक कलर, आई का कलर देता है ब्लैक कलर टू द आई, इट गिव्स ब्लैक कलर टू द आई, ब्लैक कलर आई। लेकिन उसी का रिसेसिव एलिली स्मॉल बी, आई एम जस्ट सपोजिंग, स्मॉल बी देता है ब्राउन कलर आई। मतलब ये कैपिटल बी अगर और एक कैपिटल बी के साथ पेयरिंग करता है, अगर ये कैपिटल बी के साथ पेयरिंग करता है तो ये देगा ब्लैक कलर। ओके, बिकॉज ये तो डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है। और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ भी पेयर करेगा तभी भी ब्लैक कलर ही देगा आई को, बिकॉज इस स्मॉल बी इज रिसेसिव ऑन कैपिटल बी। तो ये कैपिटल बी ये प्रेजेंट है, इसीलिए स्मॉल बी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो कलर ब्लैक ही होगा। लेकिन अगर स्मॉल बी पेयरिंग करता है तो बनेगा ब्राउन कलर, अदरवाइज ब्लैक ही रहेगा। ओके, तो एलिलीज को हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एलिली। होमोजाइगस एलिली मतलब क्या? इट possess two identical एलिलीज। एलिलीज क्या है? टू आइडेंटिकल होता है, आइदर दोनों ही डोमिनेंट होगा या फिर दोनों ही रिसेसिव होगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग होमोजाइगस को फिर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड होमोजाइगस डोमिनेंट, अनदर इज कॉल्ड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या होता है? इट पॉजेस टू आइडेंटिकल, दोनों ही आइडेंटिकल रहेगा,
आइडेंटिकल डोमिनेंट एलीलीज, 2 आइडेंटिकल डोमिनेंट एलीलीज। जैसे कि हम लोग अगर कोई प्लांट का टॉलनेस का बात करें तो टॉलनेस अगर ये डोमिनेंट है, टॉलनेस इज डोमिनेंट एंड इफ इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन तब क्या होगा, कैपिटल टी रहेगा, ये पेयर करेगा और एक कैपिटल टी के साथ, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये रिसेसिव होगा, जैसे रिसेसिव शॉर्टनेस, अगर कोई चीज़ ड्वार्फ है शॉर्ट, तो मैंने कैपिटल टी को रिप्रेजेंट किया था टॉलनेस से, तो इसी का रिसेसिव मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगी। तो होमोजाइगस रिसेसिव में क्या करता है, इट पॉजेस 2 आइडेंटिकल रिसेसिव एलीलीज, दोनों ही रिसेसिव है। जैसे कि ड्वार्फ जो होता है उसमें दोनों ही रिसेसिव, दोनों ही स्मॉल लेटर जीन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, ये 2 एलीली तो रहता है इसमें, इट पॉजेस द 2 एलीलीज, इट पॉजेस द 2 एलीलीज मीन्स, लेकिन 2 एलीलीज ऑफ नॉन आइडेंटिकल और दे आर नॉन आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल नॉन, सो 2 एलीलीज विच आर नॉन आइडेंटिकल। जैसे कि अगर मैं कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट वन, स्मॉल टी इज अ रिसेसिव वन, तो दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ये बन जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अभी हम लोग इसमें क्रोमोसोम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जो इतना जीन, एलीली, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सबको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ किया, इसमें मैंने कैपिटल ई रिप्रेजेंट किया एलीज ऑफ द सेम जीन, मतलब सेम, दोनों ही सेम कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। देन कैपिटल बी, लेकिन ये कैपिटल ए कैपिटल बी जो है, दोज आर नॉट एलीज ऑफ द सेम जीन, दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने लिखा एलीज ऑफ द डिफरेंट जीन, दोनों अलग अलग जीन के लिए एलीज है, तो ये दोनों नॉन एलीज भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको नॉन एलीज भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने कैपिटल ई लिखा, सेम लोकस में कैपिटल ई दूसरे में भी लिखा, मतलब दोनों ही कैपिटल है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। इसमें देखिए मैंने दोनों में ही स्मॉल लेटर लिखा, दोनों ही, इसमें भी स्मॉल लेटर है, इसमें भी स्मॉल लेटर है, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर एक में कैपिटल लेटर और एक में स्मॉल लेटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। आप बस ये एक चीज़ याद रखिए, हम लोग अगर कभी भी क्रॉस लिखते हैं तो डोमिनेंट एलीली को हमेशा पहले लिखते हैं और रिसेसिव को बाद में लिखते हैं, इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने टी लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा, बिकॉज हमेशा डोमिनेंट एलीली को हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।